चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं बिस्मिल्लाह। And before I start, we will do exactly what we have been doing for the last 2-3 classes, right? Which is a review of the previous and try and understand अगर आपके जहन में कोई question है, कोई clarification है, any thoughts, any feedback on almost half the course is done. Today is session number 4. किसी के कोई views, thoughts, पिछली क्लास के बाद कैसा लगा? You remember what we did in the last class? What the star was all about? तो शुरू की जो क्लासेस हैं उसमें हम सेल्फ मिस के हमें हमेशा अपने नफ्स पे काबू पाना चाहिए, नफ्स पे कंट्रोल बिल्कुल करना ऐसा ही चाहिए। है, जब तक हम नफ्स बिल्कुल पे ऐसे ही कंट्रोल नहीं करेंगे हम किसी को भी नहीं डेफिनेटली वो दो 100% ऐसा ही है, ऐसा ही है। और जिस कॉन्सेप्ट पे हम बात कर रहे थे वो सेल्फ से भी आ गया, यानी हम हायर सेल्फ की बात कर रहे थे, राइट? कुछ लोगों ने मुझे फीडबैक दिया और मुझे खुद भी ये महसूस हुआ कि आफ्टर द क्लास that class became too heavy and was slightly more overwhelming for us. Anybody else felt like that? किसी और को लगा कि बहुत ही ज्यादा डीप था या बहुत ही ज्यादा within a very short time it was just too much to take on emotionally? It felt No, like no, it was. I had a very good time. ब्यूटीफुल कौसर। एनी अदर थॉट्स? कौसर ने उस वक्त भी रिफ्लेक्ट किया था, बाद में भी आपने मैसेज किया, बट you can differ. You can say it was difficult for me. It was too much. If this is how you felt, there is no harm to share. Okay, चलो हम स्टॉप करेंगे, लेकिन मेरा मकसद ये था कि देखो sometimes when we, like I said, we are so busy in our routine, when we take out time and when we are bombarded by questions over questions and thoughts which we have not been thinking of, तो एकदम से फीलिंग ये आ सकती है कि it is overwhelming, but that's exactly what we are trying to do, right? मैं आपको यही तो समझा रही हूँ कि जब हम सेल्फ को खोलेंगे तो you will open all aspects of it. Or some of it might be something which you are aware of, some of it might be something that you're not aware of, and then some might be areas that you were trying to forget or you thought you had forgotten. And it can easily open up and it would bring out memories or thoughts or emotions which you are aiming to repress. ठीक है? तो वही तो एस्पेक्ट्स हैं। सेल्फ डिस्कवरी आपके कोर्स का नाम है, राइट? So self-discovery is learning about yourself, and that is again and again हम कह रहे हैं is your whole self, the aspects of it which you are absolutely proud of, which are sorted, but also getting to identify or coming to face with aspects of your life which you want to further improve या enhance, right? तो हर चीज का जवाब तो इस कोर्स में नहीं मिलेगा, लेकिन ये जरूर मिल जाएगा कि मेरी प्रायोरिटीज क्या हैं, मुझे किस चीज पे गौर करना है, कौन सी चीजें मुझे लगता है मेरी जिंदगी में सॉर्टेड हैं, कौन सी मुझे इम्प्रूव करनी है और कौन सी ऐसी हैं जिसके लिए मुझे डेफिनेटली इस पे काम करने की जरूरत है, वेदर पर्सनली मैं काम कर सकती हूँ या मुझे प्रोफेशनली काम करना है। तो हम आज के बाद इतना हायर सेल्फ को नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है सेल्फ ही लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है, तो हायर सेल्फ जो है वो और मुश्किल है। लेकिन मेरा मकसद था कि मैं आपको उस लेवल तक जरूर लेके जाऊं ताकि यू अंडरस्टैंड। जैसे जैसे जो है ना, हमें कहा गया है ना कि हमारे अंदर ही एक यूनिवर्स है, हमारे अंदर ही एक दुनिया है, तो वो कौन सी पीक है, किस लेवल पे जाके मुझे गौर फिक्र करना है, तो मैं अपने आप से उस लेवल पे कनेक्ट करूंगी। तो विल पॉज हियर, we will stop here, and then today we will look at another new dimension, a new aspect of self, inshallah. I do hope that you have your art books and everything, because today we will start, and all three activities are actually artwork. Yes, we have. They're easy artwork today, inshallah. तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एक इमेजिनेशन वाली आर्टवर्क से, और हमें ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, राइट? सो आई वांट यू टू open your artwork, connect yourself, and then imagine. You can close your eyes and imagine, yeah, you can think with me and imagine. तो आप एक कमरे में आ रही हो और उस कमरे में जो है वो एक ब्यूटीफुल सा विंडो है, विंडो के बाहर आप देख रही हो तो एक गार्डन है, ठीक है? विंडो के ऊपर
जो आपका स्लैब है विंडो के पास, वहां पर एक फ्लावर पॉट पड़ा हुआ है, राइट? जब आप उस फ्लावर पॉट को देखते हो तो आपके जहन में ये बात आ रही है कि ओ ये तो विंडो से थोड़ा दूर है, इस पे सनलाइट नहीं जा रही है, तो मैं ऐसे करती हूँ कि इसको थोड़ा सा विंडो के करीब मूव कर रही हूँ। जैसे ही आप करीब मूव करते हो आपके हाथ से वो प्लांट गिर जाता है। कहानी समझ आ गई? You enter in a room, you look, and you find a beautiful window outside the beautiful garden. You spot a pot, you look at the pot and you're like, इस पे तो सन नहीं आ रहा, इसको थोड़ा सा मूव करो। आपने मूव किया, आपके हाथ से प्लांट गिर गया। मेरे साथ है सब? Yeah. जी. Can we take some time to Yes. just draw this? Don't spend a lot of time, but just put it out on paper. Yes. Okay? So you can just make, like, for instance, a window in a garden and a flower pot. Very important flower pot. Once you've made the place, just if you could give me a thumbs up. Sarsa, a broken flower plant or the same one? अभी तो हम सिर्फ वहां तक आएंगे। बहुत अच्छा पॉइंट है कौशल। हम सिर्फ वहां तक आएंगे कि हम एक विंडो बना रहे हैं और विंडो के बाहर गार्डन है और आपके पास इधर एक स्लैब है, उसके ऊपर एक पॉट पड़ा हुआ है। Once you've done that, the second point is exactly what you said, Pasha. The second point is that I will give you 3 options. I want you to now think what happens to that pot, right? 3 possible scenarios हो सकते हैं। For instance, वो आपके हाथ से तो गिरा, बट जब आपने झुक के देखा तो आपने कहा ओह ओके थैंक गॉड, वो नीचे गिरा हुआ तो है लेकिन बिल्कुल इंटैक्ट है। So nothing has happened to it. You can go out, you can pick it and you can put it back, right? Option 2 is where you are saying the pot is broken, but the plant and the flowers or whatever was there in it is absolutely intact or survived. And then the third option here is that both the pot and the plant are completely smashed. अब आप ये 3 ऑप्शंस को पढ़ो और इसमें से आपको जो अच्छा देंगे, अगेन ये वाली चीजों में ज्यादा सोचना नहीं है। The first thing that clicked with you, option A, B, C, just select that. Only one option. वो select करना है आप and you फॉर्मर can draw पिक्चर को that also. दोबारा से प्लीज Sorry, फॉर्मर what's that? पिक्चर को दोबारा से लगा दो. जी. Okay. So this is what you're Thank drawing. you. And when you draw this, you will think of अच्छा उस प्लांट का होगा क्या? मैंने आपको 3 ऑप्शंस दे दिए। मिस पॉट गिर तो गया, पॉट टूट गया, बट लेकिन जो प्लांट्स हैं वो सलामत है, मतलब उनको कुछ नहीं हुआ लेकिन वो फैल गए। परफेक्ट, ठीक है। सो होल्ड ऑन, इसका मतलब आपने ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया है, ठीक है? So the rest of you, I'll give you another 2 minutes to draw and think about your option. मिस यही होगा अगर हम भी गए। After you've drawn this, remember आपके 3 options जो हैं वो ये हैं, okay? The plant is either intact, कि plant को कुछ भी नहीं हुआ, वो पीछे गिर गया था लेकिन आपने उठा के रख दिया. The pot is broken, but the plant is fine. Or the last one is both the plant and the pot are completely smashed. I'll wait 1 more minute, okay?
किसी का हो गया है तो प्लीज बताओ. You can share it on the group or you can just share. मैंने अच्छा मेरा ये है कि पॉट जो है उसको थोड़ा सा क्रैक आया है, बिल्कुल मामूली सा नहीं था. So of the three ठीक है, मैंने options, तो where उसको do you want to place it? Option 1, 2 या 3? ऑप्शन 2 के अंदर तो बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है, मेरे Hmm. पॉट को इतना Hmm. डैमेज नहीं हुआ. So would थोड़ा you सा say साइड between से 1 and डैमेज 2? हुआ. आई विल प्रेफर वन. Oh, perfect. I Anybody will else? not say it's not damaged. So which option did you select? Just at this stage यही बताओ. बस one. 1. Okay. Anybody else wants to share? Yeah, I did the same thing. Give it a 1. crack, but it's not Okay. completely Wonderful. broken. Anybody for option 2 or 3? Okay. You know what I'll Option do? 2. Option 2? Okay. ठीक है ना. What I will do is I will leave some message on the screen और जिसका वो ऑप्शन है सिर्फ वो ही पढ़े, बिकॉज अगेन फिर आपका माइंड कंफ्यूज हो जाता है. तो सबसे पहले हम ऑप्शन 1 को करेंगे कि अगर आपने ऑप्शन 1 एक्सप्लोर किया है तो मे बी अगेन it could indicate something like this about you as a person. Okay, so we are on option 1. For those who selected option 1, इसको पढ़ो. You don't have to reflect on it by sharing in the group, लेकिन अपने mind में देखो. To some extent, do you think this applies to what you are doing it yourself? For those who selected option 1, can you relate to this? तो ऑप्शन 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया, हम बोल रहे हैं आप स्ट्रांग हैं, कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन क्या कह रहे होते हैं, you're eager to demonstrate your coolness under fire. So basically जब बहुत ज्यादा स्ट्रेसेस या बहुत ज्यादा क्या कहते हैं challenges होंगे, whether again it could be some situation or it could be a phase of life. So you demonstrate या अपने आप को इस तरह शो करते हो कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं मैनेज कर रही हूँ, but underneath it could be a person who is really struggling or working very hard to keep an image कि हाँ एवरीथिंग इज ओके, मैं सब एक साथ लेके चल रही हूँ, मैं मैनेज कर रही हूँ, बट परहैप्स इनसाइड यू आर स्ट्रगलिंग and you're making an extra effort to appear to be strong and confident, right? So reflect on it and then maybe we can discuss individually. And then option 2 को देखो, जिन्होंने option 2 select किया था. This is very true, Saj Papa. Thank you, Kausar. Thank you for sharing. Again, देखिए कोई भी चीज हम इस तरह करेंगे क्लास में तो it's not made specifically for one person. It's a very general thing. तो अगर आप मुझे कहोगे 50% of this is also something I can relate to, I think we are on track. So option number 2, anybody wants to read this and say कि हाँ, what are your thoughts if you selected option 2? ऑप्शन 2 क्या था? ऑप्शन 2 ये था कि आपका पॉट इंटैक्ट है, लेकिन सॉरी आपका पॉट ब्रोकन है, लेकिन आपके फ्लावर्स या प्लांट्स बिल्कुल इंटैक्ट है. लाइक जैसे मे बी फरवा ने कहा कि मे बी द प्लांट्स आर देयर एंड मे बी स्प्रेड, राइट, बट खराब नहीं हुए, डैमेज नहीं हुए. तो ऑप्शन 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में या उनकी सेल्फ के बारे में हम आज क्या कह रहे हैं कि दे आर द काइंड ऑफ पर्सन हु कैन बी काम, या कम से कम लोगों को काम नजर आ रहे हैं, राइट? कि लेकिन अंदर से ये वो लोग हैं जो अपने इमोशंस को बिल्कुल नहीं शो करना चाह रहे या शेयर करना चाह रहे हैं, लेकिन वक्त क्या आता है कि वो जो सारी इमोशंस और फीलिंग्स अंदर रह जाती हैं, they keep growing and growing and growing until one day they expand and they explode, right? So anybody wants to share, what do you think if you selected this option? I think I'm just thinking out loud. Maybe it's not hating your emotions, it's just you know how to hide them. Oh, I think I missed the that- magic word here. Hate to show their emotions. So it's more about, letting the other person know and sharing their emotion or expressing, right? That is why it's pent up or it's built in inside. But I think Imam Ali ka
पता नहीं किसका कॉल है, बट होना चाहिए ना ऐसा कि जो आपके जो इमोशंस हैं वो बहुत I'm not sure what the exact saying is, Yeah. but ऐसा कुछ था. But I think Zainab, what you're right, but I suppose what we misunderstand is expressing it in the wrong way, right? But That's true. That's if true. you go in the journey of emotions are meant to be expressed, right? Emotional expression is a whole journey in itself. लेकिन गलत तरीके से express करना एक वहां पर problem आ जाता है. दूसरा क्या हो जाता है कि वो वाली बात जो इसमें लिखी है कि if you keep it inside, it's probably either going to come out in the wrong way, in front of the wrong person at the wrong time, or it's going to affect your health. So the emotional literacy is all about learning to express your emotions in the right way at the right time, right? And if you can't do it with another person or the person you would like to express with, then you do it in a way which is safe, right? And that's emotional coping journey. So that's finding emotional outlets, right? Absolutely. Okay. Right? Healthy emotional outlets. ठीक है. तो इसको जिन्होंने select किया, क्या ऐसा आपकी personality में है कि आप अंदर रखते हो, फिर या तो आपकी तबीयत खराब होने लगती है या पेट में कुछ होने लगता है या stress में आ जाते हो? क्या can you relate to this? I hear a yes. अच्छा, मैं अपने बारे में बताऊं, मैंने यही वाला select किया था because I can मैं also कभी-कभी relate. स्ट्रेस में आ जाती हूँ. I can also relate to this, and I think over the years, like we spoke about it, Zainab, even I learned that, okay, maybe I'm not comfortable, although it's my field, I'm not comfortable expressing it with somebody, but I need to find a way to express my emotions and an outlet. So again, it's about self-care and journey of self-discovery. Anybody selected option 3? बहुत कम है, लेकिन ऐसे करते जरूर हैं. तो अगर कोई आपको कभी ऐसा मिला जो ऑप्शन 3 सेलेक्ट करता है, जिसमें क्या था कि both the pot and the plant are completely damaged, completely kind of beyond repair. So it sounds very horrible, लेकिन इसके बारे में क्या होंगे? You seem to be soft spoken, you seem to be a natural listener, and it's crying out for a chance to shine. Basically, ये वो ख्याल हो गए जो अंदर से बहुत soft हैं. हालांकि you know, when you hear about it, oh, everything is damaged, you might hear, oh, this personality is broken. But it's not the case. It could be somebody who has so much more to offer the world, right? So much that is there inside which has to come out. And basically, it's a concept of self-worth. कि वो कुछ मौका ही नहीं मिला अपने आप को present करने का, ठीक है? So perhaps you might come across, very rarely I come across people who have chosen this, but there are some. But again, there's something that you will learn about yourself and others. So I'm going to pause here and I'm going to say, how was this little exercise? What did you learn about yourself? साजदा मैं ये पूछ रही थी कि ये जो हमने इसका निकाला, तो ये 100% तो नहीं होगा ना हर इंसान के ऊपर. लाइक उसमें से 50%, 70%. लाइक फॉर एग्जांपल मेरा ऑप्शन 2 था, एंड इट सेज के दे हेट टू शो देयर इमोशंस. इन माय केस आई एम ऑलवेज ओपन टू एवरीबॉडी, और मेरे इमोशन सबको दिख रहे होते हैं. गुस्सा भी दिख रहा होता है, हंसी भी दिख रही होती है, सब कुछ है. लेकिन यस, एक टाइम ऐसा आता है कि जब मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे इमोशंस को कोई मिसयूज करेगा, तो ही मैं उस वक्त अपने इमोशंस को हाइड करती हूँ, वरना नहीं करती. तो यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि 100% ये जो है सही होगा, लेकिन टू सम एक्सटेंट इट विल बी ओके. एंड यस, उस चीज से मैं बिल्कुल रिलेट कर सकती हूँ कि वो मेरे अंदर अंदर बनता रहता है, एंड देन वो मेरी कंफर्ट ईटिंग में निकल रहा होता है या मेरे माइग्रेन में निकल रहा होता है. बट यस, इट इफेक्ट्स यू. Absolutely. And बिल्कुल, I think I will repeat कि throughout, बहुत सारे आज हम 2-3 इस तरह की एक्सरसाइज करेंगे. Throughout आप ये चीज याद करो कि अगर हम 1-on-1 कर रहे होते तो फिर maybe we will say modify, it's about you. But these are general things, like you can take this knowledge and apply with your friends, your family. अगर बच्चे भी हैं, बच्चों के साथ भी हमने ये एक्टिविटीज की हैं, especially for those where you are like stuck, you don't, मुझे समझ ही नहीं आता इनके बारे में कि ये कैसे सोचते हैं या इनका प्रोसेसिंग कैसा है. तो जिस तरह मैंने आपसे वो लव लैंग्वेज वाला शेयर किया था, I would highly recommend you to do it with, you know, people you're close to, and so that both of you can know each other. उसी तरह इस तरह की छोटी छोटी activities हैं, but it helps us to give a certain pathway, a direction
ये किस किस्म का इंसान है या क्या चीज इनके अंदर है, ठीक है। तो जरूर करो। जब हम पर्सनालिटी थ्योरीज या पर्सनालिटी टेस्ट या पर्सनालिटी एक्सप्लोरेशन, ये वाली पर्सनालिटी के टेस्ट में आती है, तो दे आर टू काइंड ऑफ टेस्ट विच आर अवेलेबल। इस तरह की चीजें आपको कभी कभी फेसबुक पे या कभी इंस्टाग्राम पे मिल जाता है, राइट, डिस्कवर योरसेल्फ या नो अबाउट योरसेल्फ। इसको हम कहेंगे कि ये नॉन क्लिनिकल है, ये जनरल पॉपुलेशन के लिए। और जो मैंने आपको MBTI शेयर किया था, वो एक स्पेशलाइज्ड टेस्ट है बाकायदा, उसके बारे में नॉर्म्स हैं, यूनिवर्सली यूज होती है, रिसर्च बेस्ड एविडेंस है। तो दोनों चीजों से कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ जरूर पता चलता है। तो आई वुड हाईली हाईली रिकमेंड यू टू ट्राई दैट ऑल्सो। तो अभी हम इसको स्टॉप करेंगे, लेकिन हम इस चीज पे आएंगे कि हम ये क्यों मेहनत कर रहे हैं। What are your thoughts on this quote? मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है उन लोगों की जिनसे मुझे मिलना है जब मैं ऊपर जाऊं, तो मुझे इनसे मिलना है, क्योंकि वाकई बड़े मजे मजे की बातें की हैं। When I read this quote, I said it's beautiful, क्योंकि वाकई दिस वर्ल्ड इज सच अ प्लेस दैट, खासतौर पे आज की दुनिया बहुत ज्यादा competitive हो गई है, बड़ी रफ एंड टफ हो गई है लाइफ। सो इफ यू आर स्टैंडिंग इन अ पोजिशन where you don't know what you want, right, or who you are, the world is a very cruel place। और इस वक्त मेरे जहन में दो बड़े प्यारे बच्चे आ रहे हैं। मैं आपको एक स्टोरी, ओनली फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, I want to explain. So I work with a lot of children. Some of these children have special needs. Some of them fall under the category of borderline IQ, and some of them come to us with very serious emotional disturbances. तो इस वक्त मैं आपसे जो एग्जाम्पल शेयर करूंगी are real cases of 2 children, and I want you to think with me. So this particular child, she's 14, right? लेकिन उसका जो IQ है, अब उसकी हिस्ट्री है कि वो बीमार हो गई थी, शी वाज बोर्न एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन फिर कोई मतलब हाई ग्रेड फीवर एंड देन शी रिग्रेस्ड। एनीवे, सो शी इज 14, बट आई विल से उसका जो मेंटल एज है ना, वो बिटवीन 4 to 5 है। तो आप सोचो कि क्या होगा ना, क्या लेवल होगा उसका। तो जो मेरा रूम है उसके अंदर जो टेबल है, टेबल के ऊपर एक जार के अंदर बहुत सारे लॉलीपॉप्स हैं। So imagine this, there are lots of lollipops and children come and they see, we offer them. So this particular girl, she comes in my room and she's like, मुझे lollipop चाहिए। I said, okay, आप ले लो, आपको कौन सा चाहिए? And then she's like, no, मुझे एक और चाहिए मेरी बहन के लिए। And I'm like, okay। तो मैंने ऐसे ही निकाल के दे दिया, तो मेरे हाथ में ऑरेंज वाला आया, क्योंकि भाई ऑरेंज। ना, ऑरेंज वाला नहीं पसंद मेरी बहन को, आप मुझे ये वाला दो, लाइक मिसाल के तौर पे स्ट्रॉबेरी वाला दो। सो दिस इज अ गर्ल who is 14, she's tall, broad in front of me, लेकिन हाँ मेंटल एज मुझे पता है क्या है, 4 year। बट ना सिर्फ वो अपना चूज कर सकी कि मुझे ये फ्लेवर चाहिए, बट उसने अपनी बहन के लिए भी मुझे करेक्ट किया कि ना, दिस नो दिस, राइट। So to be able to understand who she is and to be able to understand who that person is। और उसके थोड़ी ही देर बाद जो बच्चा मेरे पास आया, now this is maybe a 7-year-old, around 6-7-year-old, grade 1 का बच्चा समझो, ठीक है। The school had referred this child with serious emotional difficulties, और वो इमोशनल डिफिकल्टीज उसकी पढ़ाई पे असर कर रहे थे, ठीक है। अब क्यों था, क्या था, वो एक अलग कहानी है, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि ये 7 साल का बच्चा है, ये मेरे सामने खड़ा हुआ है और इसको मैं ऑफर कर रही हूँ, मैं इसको बोल रही हूँ, डू यू वांट अ लॉलीपॉप, राइट। अच्छा, इमोशनल डिफिकल्टीज की वजह क्या थी? इमोशनल डिफिकल्टीज की एक वजह ये थी कि ये एक बहुत बड़े जॉइंट फैमिली में रहते थे, राइट। तकरीबन आई थिंक दे हैड अबाउट 25 people living in one big house, right? That means कि 3 or 4 sons and उनके बच्चे पूरा, to the extent that इसका और इसका एक कजन था जो बिल्कुल सेम एज के, बिल्कुल सेम एज, शायद मुश्किल से कुछ मंथ्स का फर्क था। अच्छा, सेम क्लास, सेम स्कूल, सेम एवरीथिंग, टू द एक्सटेंट दैट उन बच्चों के जब नाम लिए जाते थे ना, तो वो बन गए थे, मिसाल के तौर पे वो बन गए थे अली हसन, कि एक आइडेंटिटी भी नहीं थी। आप समझ रहे हो? इट वॉज जस्ट टूगेदर। दैट अदर किड वॉज शार्प, स्मार्ट, उसकी जो आइडेंटिटी वो
पूरा इस बच्चे को रैप कर दिया था, उसकी अपनी कोई शनाख्त नहीं थी। जब मैंने उसको कहा आपको कौन सा लॉलीपॉप चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मुझे ब्लू चाहिए, उसका जवाब था जो हसन को पसंद है। And when you hear that, I was like, बेटा लेकिन आपको कौन सा चाहिए, right? So at that point I understood to the extent where this child's life has absolutely no me in it, myself, मेरी identity, right? तो जितनी मेहनत हमें, मतलब उसके स्कूल ने तो रेफर किया ना कि भाई इसको पढ़ाएं, ये पढ़ता नहीं है या सीखता नहीं है, कुछ नहीं, या रिस्पॉन्ड नहीं करा क्लास में, बट द कोर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, जितनी मेहनत हम इस सेल्फ के ऊपर कर रहे हैं, द कोर ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज यू, योर सेल्फ, योर आइडेंटिटी। जब तक आपको अपनी शनाख्त, अपनी आइडेंटिटी का नहीं पता होगा या आप उसको डेवलप नहीं करोगे, तो बिल्कुल यही कोट होगा जो इसने बोला कि फिर लोग ही आपको चला रहे होंगे, राइट? और ऐसे एडल्ट हमारे पास है ना जिनकी लाइफ बड़े ही चला रहे हैं। अब वो क्या रॉन्ग है, क्या पेरेंटिंग है, क्या है। सो माय पॉइंट इज, देखिए वो जनरेशन तो निकल गई, बट द जनरेशन वी आर सपोज टू ब्रिंग अप are going to live in a time which is slightly more harsh and in a way more cruel. पहले तो फिर भी मैं कहती हूँ मासूम लोगों की जगह थी, इनोसेंस की जगह थी, अब तो बहुत टफ हो रही है ये दुनिया। तो बहुत मेहनत हमें करनी है अपने आप को समझने के लिए, और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे आसपास के लोगों को समझने के लिए। तो दिस वाज अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, बट आई होप यू अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड कितना जरूरी है, आपकी हर चीज उससे रेडिएट कर रही होती है, राइट? So like the star, don't forget the star that you gave yourself, how important it is, because how many arms come out from there, right? So again, I'm going to pause a little and I'm going to take thoughts from you. What do you think of this? What an amazing, amazing, amazing example. बात समझ आई कि मैं क्या कह रही हूँ? मतलब इतनी छोटी सी चीज थी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो वो जो आपके पास आते हैं ना बड़े बड़े एडल्ट, जो कहते हैं कि यार देखो, we all have surrounded by, or you may know of men who say कि भाई वो अपना खाना नहीं निकाल सकता। like, अच्छा, मतलब नहीं, आप प्यार से निकाल के दे रही हो खाना, बाय ऑल मीन्स, या ऑफिस के लिए कपड़े भाई प्यार से आप निकाल के दे रही हो, बाय ऑल मीन्स, लेकिन आपको ये कहना कि वो कपड़े नहीं निकाल सकता या वो खाना ही नहीं डाल, मैं नहीं होंगी तो वो खाना नहीं निकालेगा। My God, what level of training was that, right? कभी कभार जब मेरी बेटी बहुत मुझे बिकॉज आई वांट दिस, मतलब मुझे बुक चाहिए बिल्कुल बेकार वाली, बड़ा आस्क माय हस्बैंड भले बेकार है उसकी अपनी चॉइस से दिला दो, वरना चॉइस पे सप्रेस हो जाएगी, फिर वो बोलेगी जो मम्मी बोलती है वो होगा। So a huge chapter on parenting, और कभी मिलेंगे तो इंशाल्लाह इस पे काम करेंगे, is how to teach your children decision making. कंट्रोल हमेशा आपके पास ही होना चाहिए, राइट? बिल्कुल दुकान में ले जाके कुछ भी खरीद लो फिर तो आपको बहुत मुश्किल होगी, राइट? लेकिन कंट्रोल्ड चॉइसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है, और वो तमाम चीजें आपकी आइडेंटिटी डेवलपमेंट का हिस्सा है। तो उससे आज एक थोड़ा बहुत आपको समझ आ जाएगा कि आज हम क्या कर रहे हैं। आज हम अगेन अपने हार्ट के अंदर जाके देखेंगे, क्योंकि द मोर यू लुक इनसाइड व्हाट विल हैपन। बाहर देखोगे तो बस वही सोचते रहोगे ना, जैसे हम कहते हैं ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। इट्स अबाउट सेल्फ रिफ्लेक्शन, इट्स अबाउट लुकिंग इनसाइड, इट्स अबाउट डेवलपिंग योरसेल्फ। दूसरों को बोलना बड़ा आसान है ना, कि यो कर लो और ये कर लो और काश तुम ऐसे होते, तुम्हारे अंदर ये मसला है, दिस इज हाउ यू डू इट, इट्स वेरी इजी, but it's the journey of self reflection which is tricky, which is difficult, which can be overwhelming, which is very heavy sometimes, right? और आज की जो हमने कुरान की आयत निकाली है वो भी कुछ ऐसे ही है। मेरे हिसाब से तो अल्लाह हमें इस आयत में डांट रहा है लिटरली, कि भाई जरा जरा गौर करो। मेरे ख्याल में आधे से ज्यादा सवालों का जवाब हमें पहले ही चैप्टर में मिल जाता है अगर हम सूरह बकरा को सही से पढ़ें। यू गेट दैट फीलिंग? इतनी सारी चीजें उसमें डिस्कस, ऑब्वियसली इट्स द लॉन्गेस्ट, लेकिन आई फील इतनी सारी चीजें उसी में है, बहुत सारे जवाब हमें वहां से मिल जाते हैं। कोई पढ़ना चाहेगा? जी मैं पढ़ूं। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Do you order righteousness of the people and forget yourselves while you recite the scripture? Then will you not reason? कि हम दूसरों को तो जो है वो अच्छाई का कहते हैं, लेकिन खुद अपने आप से क्या कर रहे हैं, अपनी जात से क्या कर रहे हैं, लेकिन दूसरों को हम फौरन जज कर रहे होते हैं कि वो आसान कर है रहे हैं क्योंकि सही या नहीं कर कितना रहे। आसान है। और I think all of us do it. It comes naturally again. लेकिन फिर वही वाली बात है कि जब आप करो तो प्लीज सेल्फ रिफ्लेक्ट करो, व्हाट इज हैपनिंग। कितना बुरा लगता है ना जब किसी को आप कुछ कह रहे हो और सामने से आपसे कहता है अच्छा तो तुम क्या कर रहे हो, एंड देन फिर वो एक पूरा साइकिल शुरू हो जाता है। तो इससे पहले जैसे ही हम कहते हैं ना कि जैसे ही आपका दिल चाह रहा है ना किसी को कुछ कहने का, तो कुछ लम्हों के लिए रुक जाएं एंड देन रिफ्लेक्ट। तो आपके मुंह से जो निकला हुआ अल्फाज है या जो वर्ड्स हैं, do I really need to say this? Does it apply to me? Now, this is all self exercise. ये इस तरह नहीं होता, कोई आपसे नहीं कह रहा. But then this is exactly what you need to practice, right? And it's all related to, like we were saying, sharing your emotions, expressing your emotions. तो थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करें। बहुत मजे की चीज है मेरे ख्याल में, वाकई हर सवाल का जवाब वहां से हमें मिल जाता है कुरान से। तो आज हमने सेल्फ की बात कर ली, हमने आर्केटाइप्स की बात कर ली, हायर सेल्फ की बात कर दी, इतना जूम इन कर दिया हायर सेल्फ पे कि अब हम थोड़ा सा जूम आउट करेंगे और उस सेल्फ को मैं आज ब्रेक करना चाह रही हूँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स में, राइट। तो अभी हम सेल्फ से निकल गए और सेल्फ के कंपोनेंट्स पे आ गए कि सेल्फ बनता किससे है, राइट। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज सेल्फ स्कीमा। अब स्कीमा एक बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है। अगेन किसी के बच्चे अगर छोटे हैं बिटवीन 2.5 to 5, मैजिकल एज, आई लव दिस एज इन चार्ट साइकोलॉजी, राइट। अगर आपको समझना है अपने बच्चों को, बल्कि उससे पहले भी, आजकल के बच्चे तो बड़े शार्प हैं, 18 मंथ से ले लें, राइट। स्कीमा इज द बिगिनिंग ऑफ आवर लर्निंग जर्नी। स्कीमा हम एक मेंटल इमेज को कहते हैं जो हमारे माइंड में जाता है नॉलेज का, राइट। तो मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई बच्चा है और बच्चे को जिंदगी में पहली बार अगर वो एक कैट को देखता है, राइट, इससे पहले तो उसने कैट नहीं देखी थी, पहली बार। अब चाहे आपने उसको बुक में दिखाई है या उसने रियल में देखी है, तो जो पहली बार आप कोई नॉलेज लेते हो, इंफॉर्मेशन लेते हो, इमेज लेते हो, वो चीज एक मेंटल इमेज बना के आपके माइंड में स्टोर करता है। उस इमेज को, उस नॉलेज को हम स्कीमा कहते हैं, एंड दैट्स द बिगिनिंग ऑफ लर्निंग। यहाँ पर जब हम सेल्फ स्कीमा की बात करते हैं तो हम आपके सेल्फ इमेज की बात करते हैं, राइट। यानी आप अपने आप को कैसे देखते हो। अगर आपके सामने आईना आ गया तो व्हाट डू यू सी योरसेल्फ, नॉट व्हाट पीपल से अबाउट यू, व्हाट इज माय ओन सेल्फ इमेज। मैं अपने आप को कैसे देखती हूँ, ठीक है। फिर आपका सेल्फ का पास्ट आ जाता है, उस पास्ट को हम जाके नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा देखेंगे, आज इतना नहीं, लेकिन वो भी मैटर कर रहा होता है। जैसे हमने आपसे कहा कि माइंड का कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस या सब कॉन्शियस, तो द पास्ट इज नेवर वाइप्ड आउट, कहीं ना कहीं उसके ट्रेसेस। बल्कि मैंने शायद आपसे जिक्र भी किया था दैट वी वर्क अ लॉट विद इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा, यानी ट्रॉमा विच इज पास्ट अक्रॉस जनरेशन। तो जो हम पास्ट की बात करते हैं, इट डजंट नेसेसरली मीन your own past, it could be the past over generations also that you have carried। और अगेन यूंग वाली बात भी वही है कि आप बहुत सारी चीजें अपने इनहेरिटेंस में लेकर आते हो जो आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी लाइफस्टाइल को, आपके चॉइसेस को, आपके डिसीजन को इफेक्ट कर सकती है। फिर आपका प्रेजेंट सेल्फ है और फिर अगेन आपका विजन और आपका फ्यूचर सेल्फ है। तो जिस सेल्फ को आज हम थोड़ा सा इंशाल्लाह खोलेंगे, दो मेरे नजदीक तो मजेदार एक्टिविटीज हैं। यू सी, सेल्फ इमेज को लेंगे यानी सेल्फ स्कीमा को लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम सेल्फ इमेज की बात करते हैं तो सेल्फ असेसमेंट है। अगेन आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट कि आपकी तमाम चीजें सेल्फ इमेज में आ जाती हैं। आपका अपने बारे में, आपकी अपनी नीड्स, आपका अपना मोटिवेशन, आप क्या स्पेंड करते हो, आपका स्पिरिचुअलिटी क्या है, आपकी रिलेशनशिप क्या है। लेकिन आज हम इसको देखेंगे विद दिस particular activity in the field of psychology। again symbols के जरिए हम बहुत सारी चीजों को एक्सप्रेस करते हैं, राइट।
So one of the things which are very highly symbolic in the field of psychology, particularly with art, is your क्या है? palm. Is your hand. क्यों? Why is the hand a very powerful symbol? Any idea? जैसे रेकी भी होती है तो it's through hands. Beautiful, beautiful. But why? Why is it that the hands are so powerful? जब आप सोचो तो आपको क्या लगता है कि हम हाथ से क्यों सिंबलाइज करेंगे सेल्फ को? रेकी होती है ये जो एक और थेरेपी होती है वो भी हैंड के पॉइंट से होती है, मुझे नाम Very अभी good. मुझे जैसे नहीं आ रहा। एक्यूप्रेशर है, टैपिंग है आजकल। एक्यूप्रेशर, यस यस बिल्कुल। यस, यू आर राइट। जब हम आर्ट में हैंड को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इस चीज को कहते हैं कि देखो ये हाथ मेरा है, और हम जैसे कहते हैं ना, आपके हाथ में इख्तियार है, यू हैव कंट्रोल ओवर इट, और हम कंट्रोल को एग्जीक्यूट करते हैं इन मोस्ट केसेस विद माय हैंड। आपके हाथ में है, हम कहते हैं ना डायलॉग पे हमारे पास, हमारे आपके हाथ में, आपके इख्तियार में, आप कर सकते हो इस चीज को। तो अभी जो चीज हमें करनी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस, वो ये करेंगे जैसे हम बचपन में मेहंदी लगाने की प्रैक्टिस करते थे, कि हम एक पेपर लेंगे, यू ट्रेस योर डोमिनेंट हैंड। जब हम कहते हैं डोमिनेंट हैंड, इसका ये मतलब कि जो लेफ्टी है वो लेफ्टी करेगा, लेकिन अगर हम जैसे काफी लोग राइट हैंडेड हैं तो हम राइट हैंड ट्रेस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला काम करेंगे। इसके बाद अगर आपको अपने आप को ड्रॉ करना है, बेशक अपने आप को ड्रॉ करें। मुझ जैसे लोग आई एम लिख लेते हैं, क्योंकि भाई ठीक है, आई नो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, राइट? इट्स नथिंग एल्स, इट्स अबाउट हाउ आई सी माई सेल्फ। और इसके बाद क्योंकि हम 5 पे, हम वही है ना जो 12 14 5, सो हम 5 पे ऊपर आज फोकस करते हैं कि 5 things which you feel are the most important for you when you think about yourself. क्या है? Do you find yourself that you're intelligent? Do you find yourself you're friendly? Do you think you're creative? Do you think you're talkative? Do you think you are cheerful? क्या चीज है जो आप कहते हैं ना हम adjectives? How will you describe yourself? How do you see yourself? वो नहीं कि लोग कहते हैं, वो हमने कर लिया पहले कि लोग कहते हैं, नहीं, लोग नहीं कहते। आपको अपने बारे में क्या लगता है? कि यहाँ पे मैंने जो कोट है वो यूं की बात को आगे बढ़ाया है कि what he's saying is what you see in others can tell you something about yourself, right? उसी चीज को मैं आगे बढ़ा रही हूँ कि what sometimes you see in others, कि हाँ ये चीज इसके अंदर कितनी अच्छी है, कहीं ना कहीं उसकी झलक शायद आपके अंदर भी होती है, and that is the light that needs to maybe grow and shine. So I don't want you to think about the distracting bits of life. I want you to focus on yourself. तो हम हाथ लेंगे, हाथ को ड्रॉ करेंगे। इसके बाद आपकी मर्जी है, अगर आप ड्रॉ करना चाहो आप ड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन यूज एंड राइट वर्ड्स टू डिस्क्राइब योरसेल्फ। If you can draw, that would be wonderful. It includes positive and negative both. Anything. देखिए सेल्फ इमेज है ना, आप अपने आप को इस वक्त कैसे देख रहे हो? अगर हम कहते हैं ना सेल्फ मिरर, अगर आप अपना मिरर, अपना रिफ्लेक्शन देख रहे हो, तो अगेन हाउ डू यू सी योरसेल्फ? स्टार्ट कर ले। जी जी बिल्कुल, आई डोंट वांट यू टू रश दिस, स्टार्ट कर। आराम से करो इसको, और आई विल गिव यू अ गुड maybe 10 minutes to do it properly. Okay, it's 11:43, let's do it at least till 10:50, 52. Does it have to be like in general? Yeah, if it's something that's on my mind currently and that's what's on my Absolutely, I mind, mean, but not like long term, it's probably not going to be there. Ideally it is how you see yourself, right? So it's not things that you are struggling with, it's your adjectives, it's what describes you for you, so your qualities. साथ साथ में आपने जो Okay. निकोलस की कोटेशन आपने शेयर किया है,
हाँ ये लाइट ये ये वही वाला एग्जैक्टली समझ है कि मोमेंट मोमेंट का आईनादार है। Is it the same? ब्यूटीफुल, क्या बात है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर हम कभी कभी है ना ये क्वालिटीज अपने अंदर नहीं देख रहे होते, हम दूसरों से बड़े इंस्पायर हो जाते हैं कि वाह उसके अंदर ये है। बट अगेन मैं आपको यही कह रही हूँ कि जब आपको किसी के बारे में भी कोई बहुत स्ट्रांग फीलिंग या इमोशन आ रही है ना, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, कि मुझे इसकी ये चीज पसंद नहीं है या ये चीज बहुत अच्छी लगती है, तो हमेशा उस वक्त रुक के अपने आप से ये पूछो, बट व्हाई, right? The millions of people out there, why is this person's this quality irritating me or inspiring me? And that will perhaps give you some information about yourself. Mashallah, beautiful. Thank you. I'm done. You only have to write the 5 traits of yourself, right? ये जी अभी फिलहाल हम 5 करते हैं, बिकॉज उसके बाद वाली एक्टिविटी थोड़ी और लंबी है. If there is more coming, don't stop it, but at least 5 basic qualities which you believe. Thank you, Aksa. I'm done. Done. अगर आपको शेयर करना है पर ग्रुप में, अच्छा आपने डाला है, वेट. Beautiful. Thank you, Faiza. Thank मैंने you. ग्रुप में डाल दिया है. Okay. Beautiful. इसको तो हमने बहुत जल्दी किया, बट मैं आपके लिए ये एग्जांपल्स डाल दूंगी on the group for those of you who want to do, and if you enjoy art, then I really want you to do this like a proper activity, proper exercises about yourself. जो thoughts आ रहे हैं, जो colors आ रहे हैं आपके mind में, जो colors आपको लगता है आप उनसे relate कर सकते हो, sentences, statements that describe you, things that you like to hear about yourself from yourself, right? कोई कुछ पूछ रहा था? I just saw, thank you for sharing. Did you agree with number 1, the kind of explanation? Sorry, you're asking me? 50-50. 1 and 2. I have mixed in 1 and 2. Perfect, perfect. Kausar ki tarah. Yes. Bilkul. Acha, if most of you have done, so we can move on to the final. Just give me a thumbs up if you're done and you want to move on or you want to wait a few minutes. Okay. So I'll still give you 1 minute and then we can move on. अच्छा, ये जो final वाली activity है, इसमें I hope that you can do it properly and you can use a lot of colors to do it. Because again, if you want to really learn about yourself and you want to do this properly, I think use of colors will make a lot of difference.
Not forcing, just asking you to consider that. ठीक है? ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर. अगर किसी और को शेयर करना है ग्रुप में तो आप कर लो. किसी को शेयर करना है इधर कि बना के कैसा लग रहा है? व्हेन यू लुक एट योरसेल्फ, व्हेन यू लुक एट दिस, व्हाट आर योर थॉट्स? Beautiful, Kausar. Thank you so much for sharing. When you look at your hand, do you really believe in what you have written? Is it something जो बिल्कुल फौरन से आया या वाकई आपको सोचना पड़ा कि हाँ मेरे अंदर ये है? फौरन आया है. Some of us do struggle with this, right? कि आप इतना चीजों में खो जाते हो और इतना अगेन दूसरों की पर्सपेक्टिव से अपने आप को देखने लगते हो, whether it is you as a mom or you as a wife or you as somebody even in a career person, because you're constantly looking at yourself in different roles. Sometimes you forget yourself for yourself. Right? Sometimes it can come naturally, but I think it's so important to keep reminding yourself. तो again मैंने आपको शायद पहले भी कहा था और आज भी कह रही हूँ कि अगर कोई पॉसिबिलिटी है इन चीजों को या तो बुक मार्क बना के या कोई काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन बना के कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे लगा लो जहाँ यू कैन लुक एट इट एंड यू कैन काइंड ऑफ एटलीस्ट दिन में एक दफा आपकी नजर उस पे जाए, so that if you're forgetting yourself in this chaos of life, at least you can look back and recall that, oh, this is me for me, right? This is me as my image for myself. तो थोड़ा सा इस पे गौर करें and then we will move on to so what we are trying to do is again aspects of self, right? तो सेल्फ में आज हमने थोड़ा सा सेल्फ इमेज किया कि क्या आप अपने बारे में अपने आप को कैसे देखते हो, और जो आपकी सेल्फ इमेज होती है वो आपकी सेल्फ स्टीम पे असर करेगी. इमेज इज हाउ यू सी योरसेल्फ, esteem is how you feel about yourself. Do you understand the difference? Right? No. मैं अपने आप को कैसे देख रही हूँ, मैं अपने आप के बारे में कैसे सोचती हूँ, आप अपने आप की अंदर की आवाज कैसे हो? Do you say positive things to yourself? Do you say you can't do it? तुम तो कर नहीं सकती, तुमसे कुछ होता ही नहीं है, right? या you say something better about yourself. You say well positive. Again, जब हमने wholeness की बात की है तो हमने इस चीज की बात की है कि अगर किसी चीज में किसी भी वजह से यू आर स्ट्रगलिंग या फॉर इंस्टेंस आप फेल हो गए किसी चीज में, राइट? तो उस फेलियर को भी एक्सेप्ट करना, हाँ ठीक है तो अब इस वक्त मैं इस चीज में फेल हो गई हूँ लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं चीज में फेल हो गई हूँ, आई कैन ट्राई अगेन. या आप बोलोगे अच्छा ठीक है ये चीज मेरे लिए नहीं है, आई विल डू समथिंग एल्स. बट एक्सेप्टिंग इट एज अ होल, ये नहीं कहना कि मैं फेल हो गई तो हर चीज में फेल हो गई या मैं फेल हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता. नहीं, आप एक्नॉलेज करो एंड देन यू एक्सेप्ट इट एंड यू मूव ऑन. सो आई थिंक दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि सॉर्ट ऑफ इंटर रिलेटेड है. आप अपने आप को कैसे देखते हो, यानी आपको अपनी एबिलिटीज, अपने अंदर क्या क्वालिटीज नजर आती हैं, और फिर वो चीज आपकी अपनी सेल्फ स्टीम यानी आपकी अपनी फीलिंग, आपकी अपनी काइंड ऑफ इनर सेल्फ को इफेक्ट करेगा. आप अपने आप को क्या बोल रहे हो. जिस चीज के ऊपर अभी हम थोड़ा सा काम करेंगे वो एक बात मजेदार एक्टिविटी, आई लाइक दिस एक्टिविटी, सो होपफुली वी विल स्पेंड a good deal of time and do it properly so that you can learn about yourself. Again, I want you to close your eyes and imagine with me कि हम क्या बना रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है, हम सेल्फ को डिस्कवर कर रहे हैं, हम सेल्फ इमेज, सेल्फ स्टीम को डिस्कवर कर रहे हैं. राज, ठीक है, आई वॉन्ट यू टू इमेजिन अ टावर. अब यहाँ पे मैं आपको कोई ऐसी बात नहीं बोलूंगी कैसा टावर, जैसे ही मैंने वर्ड टावर बोला आपके दिमाग में कौन सा टावर आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अभी हम एक पेपर लेंगे, अच्छे से एक अच्छा सा टावर बनाएंगे. ठीक है, the length of the tower, the size of the tower, the number of towers you want to draw.
इज entirely up to you. जैसे ही आप एक टावर बनाओगे, उसके अंदर आपने ये सोचना है कि आप उस टावर के अंदर एंटर कैसे हो गए। सिर्फ एक बनाना नहीं है, उसके अंदर आपको सोचना भी है कि अच्छा मैं उसके अंदर जाऊंगी कैसे, कौन सी मटेरियल से वो टावर बना हुआ होगा, राइट? क्या वो स्टील का टावर है, क्या वो ब्रिक्स का टावर है, क्या वो रोप से बना हुआ है। इसके बाद उसके आसपास क्या एनवायरनमेंट है, राइट? क्या वो पानी के पास है, क्या वो किसी गार्डन में है, क्या वो किसी डेजर्ट के अंदर है, क्या वो बहुत सारी बिल्डिंग्स के दरमियान है, क्या किसी बिल्डिंग के ऊपर है, राइट? ये तमाम चीजें सोचनी। एंड देन फाइनली जब मैंने वो बना दिया, तो उसका पर्पस क्या है, उसका मकसद क्या है, वो टावर करता क्या है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए? टावर समझ आ गया? टावर, टावर से क्या मुराद है? ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दें कि मटेरियल यानी कि क्या चीजें यूज हुई हैं बनाने बिल्कुल, शाबाश। मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि ये स्टील का टावर है, तो आपके जहन में कौन सा टावर आएगा? स्टील या आयरन से बना हुआ है? जो आईफिल टावर। शाबाश। इट कुड बी दैट, इट कुड बी समथिंग लाइक वो जो हम कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, सिग्नल्स वाला टावर, वो मूवीज वाले वगैरह में signal। जो देखते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो इट कुड बी दैट। और आप बोल सकते हो कि ये ब्रिक से बना हुआ है, ये सीमेंट से बना हुआ है। तो अगर वैसा टावर है तो एक बिल्डिंग की तरह होगा। तो अगेन आपकी मर्जी है। प्लीज ये तमाम एक्टिविटीज में ज्यादातर कोशिश करो कि जो पहली फीलिंग आपकी आए। हमने उस दिन भी इंट्यूशन की बात की थी ना, इंट्यूशन इज योर फर्स्ट फीलिंग, फर्स्ट इमेज। जैसे मैंने टावर से कहा, सबसे पहले आपके इमेज कौन सा आया? क्या कोई स्टील वाला ब्रिज वाला टावर टावर आया could be या like a fort something. ऐसे ये एक बिल्कुल fort होता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली यू कुड डू दैट आल्सो। और यू कुड मेक इट लाइक अ बिल्डिंग। आजकल तो हर जगह आइकॉनिक टावर्स है ना, you could, you could say it's a building. जो भी आपकी इंटरप्रिटेशन है आपके माइंड की, उसको एक्सेप्ट करो और उसको पेपर पे लाओ। अगेन कोशिश करो कि इसको अच्छे से करते हैं। I will give you a good 10 minutes for this. I want you to use the whole A4 size paper. I want you to consider the size, the length, the number. अगर एक टावर आ रहा है, दो आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं माइंड में, उन तमाम चीजों को ड्रॉ करो। इसके बाद आसपास में टावर का क्या एनवायरनमेंट है, उस चीज पे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करो। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि टावर किस चीज के लिए यूज हो रहा है। क्लियर है इंस्ट्रक्शंस? यस। I highly recommend you to use colors in this because again it makes a lot of difference. मैं भी आप लोगों के साथ बना रही हूँ। एवरीथिंग क्लियर? कुछ पूछना तो नहीं है? या
थैंक यू फातिमा। अगर कलर्स हैं तो थोड़े से कलर्स भी इस्तेमाल कर लो। Can we write words? डेफिनेटली डेफिनेटली। Thank you. Sharing will wait another maybe 4-5 minutes. Is that okay? कोई और बना रहा है?
I'm extending it. I'm Please thinking do. मैंने छोटा बना दिया है. Please बनाए बनाए बनाए. बाकी कोई और? Do you want me to wait for a few minutes? I'm done. Great. We'll wait maybe another minute or so. और कोई बना रहा है या मैं आगे बढ़ता हूँ? बस ये कंफर्म कर. I know Farwa has said I'm making. Nargis. Okay. Then we'll wait a minute or two. Okay. Wow, Pastor, it's beautiful. Add some color. आराम से when you have time. अगर इसको अच्छे से बनाओगे और समझोगे आपको मजा आएगा to understand perhaps what the mind is trying to tell you. Mind से ज्यादा heart and soul. Amazing, Kausar. Nargis, I'll still give you a minute or two, okay? Yeah. All right. For those of you who have already drawn it, when you look at it, how does it make you feel? Is that exactly what you wanted? जो आपके mind में था वही बना है या completely different? Were you surprised? What are your thoughts? ऐसे ही सोचा था, ऐसे ही बन गया. Beautiful, Nargis. मेरे माइंड में एक रेड फोर्ट था और मैंने हाँ. उसको वैसे ही पसंद किया है जो बिल्कुल सहरा में होता है, जैसे बिल्कुल मट्टी वाली जगह पे होता है. ठीक. Okay, so let's start with you if you are comfortable, Kausar. अच्छा, इस चीज को थोड़ा सा समझ लो कि मैंने आपसे कहा था कि हम आर्ट यूज करेंगे, राइट? So when we use art, there are two different types of instructions we can go. एक को हम कहते हैं डायरेक्टिव और एक को कहते हैं नॉन डायरेक्टिव.
अब इसमें आपको ज्यादा वो परेशान नहीं करना, बट ओनली टू एक्सप्लेन टू यू दैट डायरेक्टिव आर्ट इज अभी जो हम कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टिव आर्ट का मतलब होता है मैंने आपको बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि ये ड्रॉ करो, ऐसा ही है ना, तो ये टावर ड्रॉ करो, इसमें ऐसा करो, ये चीजों का ख्याल रखो। जिस तरह हमने वो वाला किया था कि गार्डन है, गार्डन में यहाँ पर आपके फ्लावर पॉट पड़ा हुआ है, these are directions, I'm giving you very clear directions. When we do directive art, in most cases there is an interpretation, there is an understanding कि अगर ये यूं बनाया है तो इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है या क्या मीनिंग हो सकता है। अगेन मैं आपको जो थोड़े से मीनिंग्स को गाइड करूंगी, वो मैं मीनिंग नहीं निकाल रही हूँ। इट्स नॉट लाइक ओ इस को ड्राइंग पढ़ने आता है, नहीं। जितना मैंने सीखा है मैं आपसे वो सीखा हुआ शेयर कर रही हूँ। मैंने कहाँ से सीखा है, मैंने वहां से सीखा है कि दीज आर प्रॉपर डायरेक्टिव आर्ट्स में इंटरप्रिटेशन की मैनुअल्स हैं, यानी ईयर्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ने ये एविडेंस निकाला है कि अगर पीपल ड्रॉ समथिंग लाइक दिस इट कुड मीन समथिंग लाइक दिस। मेरी जुमलों पे गौर करो, इट कुड मीन, इट कुड इंडिकेट समथिंग लाइक दैट, राइट। और दूसरा नॉन डायरेक्टिव आर्ट होता है जिसमें आपको बोलते हैं जैसे ही आपका दिल चाह रहा है आप बना लो। मिसाल के तौर पे जो मैंने आपको हैंड कहा था, जैसे ही आपको बनाना है आप बना लो, राइट। तो उसमें कोई क्लियर इस तरह फोर्स्ड डायरेक्शन नहीं है। या मैं आपको बोलूंगी कि हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ, उसको ड्रॉ कर लो, तो अगेन देयर इट्स वेरी वेग, यू कुड मेक एनीथिंग। तो क्योंकि ये डायरेक्टिव आर्ट है तो कहीं ना कहीं जो आपने ड्रॉ किया उसके पीछे कोई इंटरप्रिटेशन या कोई अंडरस्टैंडिंग या कोई मीनिंग निकलेगी। और जब मीनिंग निकलेगा तो मैं आपसे कह रही हूँ कि जब इंटरप्रिटेशन है, मीनिंग है, तो वो पर्सनल होना चाहिए। इस तरह के ऑनलाइन सेशंस में जब हम फिजिकली भी नहीं है तो आई एम नॉट कंफर्टेबल टू शेयर पर्सनल इंटरप्रिटेशंस, राइट, जो ड्राइंग से थोड़ा बहुत हमें इंडिकेट होगा। तो अभी जो हमारे पास क्लास में टाइम है उसमें हम ये करेंगे कि अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपनी ड्राइंग को लो और अपनी ड्राइंग के पीछे आपने क्या सोच के बनाया है वो थोड़ा एक्सप्लेन करो। जैसे कौसर आपने बताया था कि यू मेड दिस ड्राइंग एंड व्हेन यू वर थिंकिंग अबाउट इट यू वर थिंकिंग कि कोई सहरा है, कोई डेजर्ट है, वहां पर आसपास में कुछ केओस नहीं है और आपने ये टावर को ड्रॉ किया है, ठीक है। तो उस सिनेरियो को थोड़ा एक्सप्लेन कर दो कि कॉन्टेक्स्ट कहाँ बनाया है। इसके बाद आप थोड़ा सा बता दो कि कौन सा मटेरियल आपने यूज किया, फिर 1 टावर है या 2 है, कैसे हम एंटर करेंगे। मतलब आप सिर्फ ये कहानी को मुकम्मल करें। ये कहानी को जब आप बनाओगे तो फिर हम इसके पीछे इंशाल्लाह थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लाने की कोशिश करेंगे, जिसको हम कहते हैं इनसाइट, राइट, इंफॉर्मेशन कि व्हाट कुड दिस मीन फॉर यू, राइट। So are we ready to do that? Are we comfortable to do that? Oh yes, Bismillah. Chale, so we have I have your drawing in front of me. If you just want to go through the questions. Okay, number 1 पे हम ये कह रहे हैं कि ये टावर कौन से मटेरियल का बना हुआ है? ये रेड ब्रिक्स का बना हुआ है। ठीक आपने देखा है। मैंने इसके अंदर ब्राउन और रेड दोनों को थोड़ा सा, रेड नहीं, हाँ मरून, इस वो जो नहीं रेड कलर का वो जो लाल होता है, इट्स थोड़ा So सा fairy रेड tale फॉर। tower, proper brick tower, right? Oh yes, oh yes. ठीक है, कासल की तरह। No, it's not a castle. फिर एक रेड फोर्ट है जिसके अंदर सोल्जर्स जाते हैं और पूरा वो जो पहले के जमाने में जंगी जमानों के अंदर अपने आप को सिक्योर करने के लिए इस फोर्ट में घुस जाते थे। ठीक ठीक और वो ट्रिकी किस्म का फोर्ट होता था जहाँ पे ऊपर एक बहुत बड़ा टेरेस होता था और सही, उसके अंदर टनल्स होते थे, और मैंने ऐसा फोर्ट बनाने की कोशिश अमेजिंग, किया है। अमेजिंग, ठीक है, ठीक I'm है। a very bad artist, लेकिन मैंने एक पुट प्रॉपर यही किला करने की है कोशिश यानी की। ये, right? Like a fort, right? Exactly, it's a Okay, किला, yes, got yes. it, got it. ठीक है। अच्छा, so now we're moving on to is that just one tower that you've drawn one, but in your mind was it Oh like yes, this is only one, yes. just one, right? ठीक है, a strong tower made out of bricks. फिर हमारा आ जाता है कि how do you enter this? हाँ मैंने एंट्रेंस बनाना भूल गई थी, मैंने रिसेंटली बनाया है। अच्छा, With in your mind when you talk about it and for the others also you reflect on it. How do you enter में बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज पे सोचना कि क्या जो इसका दरवाजा है एंटर होने का, क्या वो बिल्कुल सामने है, बिल्कुल प्रोमिनेंट है, मुझे नजर आ रहा है, मैं खोल के आराम से जा सकती हूँ, या आप कहेंगे एक हिडन एंट्रेंस है, या आप कहेंगे कि भाई एक बहुत सिक्योर एंट्रेंस है, 2 बॉडीगार्ड खड़े हुए हैं। उस तरह की चीजों को जरा सोचना शुरू करो कि
what do you mean about the entrance? What do you want to मैंने do? आपने जैसे मुझे इंडिकेट किया, मैंने फॉर्म बना लिया था। हाँ मतलब एक बहुत बड़ा ब्रास का बहुत बड़ा सा ह्यूज दरवाजा है मेटल का, ठीक। उसको खोलना बहुत मुश्किल होता है। और अच्छा, ये मेरा इंस्पिरेशन है, ओमान में एक ऐसा टावर है, ठीक है, तो ये वहां का इंस्पिरेशन है मेरे दिमाग में। why not, बिल्कुल बिल्कुल। अगेन अगर कोई मुझे कहेगा कि मुझे टावर बनाने नहीं आता, क्या मैं गूगल करके इमेज देख के कर लूं, तो आपको कोई मना नहीं करेगा, बिकॉज इतनी सारी चीजें हैं दुनिया में। why did you pick this tower and not that, right? So again, like I said, everything is indicative of something. So it gives you a general impression of what you have in your mind. And then what is the tower surrounded by? Like you said, आसपास में कुछ भी नहीं है, या can you see something around the tower? नहीं, कुछ भी नहीं है, वो एक सहरा है, थोड़े थोड़े से नहीं जंगली प्लांट्स और Right, जंगली ट्रीज right. होते हैं, ऐसा है। Oh, इट्स अ oh, बिग टावर इन अ own lonely place. perfect. But do you think it's a safe place? Yeah, it's an escape. No, it's a safe place. People know कि यहाँ पे जो है वो soldiers होते हैं, people take a safe place over there. ठीक, But perfect. you can take it as an escape, not as an escape, as a safe place, as a shield, your shield actually. Lovely, lovely word, beautiful words. और फिर लास्ट वाला है कि भाई, ये आपने शायद थोड़ा सा बता दिया कि what is the purpose of the tower? करता क्या है? सेफ गार्ड करता है, जैसे कि पहले के जमाने में किले होते ही इसलिए थे कि बिल्कुल वो जो फिर किले में अपने आप को सारे सोल्जर्स सेफ गार्ड रखते थे कि बाहर जो लोग खड़े हुए हैं वो उनको इजीली ना अंदर एंटर हो सकते थे, ना उनको अंदर अटैक कर सकते थे। ठीक, बिल्कुल सही, ब्यूटीफुल। सो द प्रोटेक्शन ऑफ सेल्फ एज वेल एज अराउंडिंग, ऐसा ही है Oh ना? yes, perfect, perfect. ठीक है। अच्छा, कैसे इतनी सारी हमने बातें की, can you for a minute reflect and look through all this information, how the tower can be symbolizing you? Me? um, You don't have to share, just think along those lines। और फिर जो मैं आपसे कह रही थी ना, पर्सनल रिफ्लेक्शन, वो मैं आपको इंशाल्लाह पर्सनली ही छोड़ूंगी, ग्रुप में इंडिविजुअली मैसेज करूंगी, मेरा मतलब था। ठीक है, अच्छा तो okay. हम जो Yes, I एक्टिविटी can कर रहे हैं, relate. Now I can. You're right. ब्यूटीफुल, I can. हम जो एक्टिविटी करें, इट इज एक्चुअली कॉल्ड अ सेल्फ एस्टीम टावर। इट इज इन मेनी वेज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ। तो अब कोई और अगर शेयर करना चाहेगा, एनीबडी एल्स, कि आपने क्या बनाया, फिर हम उसको थोड़ा सा एक्सप्रेस करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। Can I go? यस Zainab. I drew the Burj Khalifa. Why not? ठीक है। So it's pretty tall. How do you enter inside this tower? It has a big door, like those big Glass big doors. golden doors, yeah. Okay. And is it and then something which there's is easily open and you can just walk in? it's those automatic doors. Okay, all right. And Yeah. And then there's a lift to go up. Yeah. The environment surrounding this tower is a big garden. So it's got like a fountain and like a lot of trees nearby. The purpose of this tower, it's a bit different from what the original Burj Khalifa is about. The original Burj Khalifa is a residential is a hotel. Yeah. But this one I thought was sort of like a museum or some place where people can hold workshops. It's just like a place where you can come to. It's just a big library, basically. It's like, would you say it's a place of wisdom and knowledge and something that positive energy radiates from it? Yeah, beautiful. Okay, Zainab, take all this and now, like I said, reflect it on your own life. Can you kind of make some connections, how it reflects you? Again, you don't need to share in the group. But in what way am I supposed to think? Okay, so again, देखो, हर एक चीज में कहीं ना कहीं आपको कोई कनेक्शन अपने साथ मिलेगा. For instance, I talking about the material
when we say किस material का बना, it can reflect how you feel about yourself, your inner strength. The other word here is inner strength, right? The kind of, when we say how you can enter the tower, is more in terms of people who are just making sure कि वो बिल्कुल बंद है, right? या 2 guards खड़े हैं, या ऐसा है कि कोई enter नहीं कर सकता without permission, or perhaps those who would be very careful on who they allow to come very near to themselves. Whereas those who say कि tower open है, are, I'm not saying वो किसी को भी आने देंगे, but they're more friendly, more welcoming, more kind of, you know, chatty and cheerful kind of people. Again, general terms. The environment surrounding you is again how much energy, how much positivity, how much hustle bustle you can take in. And or you would want something which is more, okay, I want to run away from this. Like kind of like what Kauser was saying, right? There's nothing around it. It's just me and my escape and my peace, right, with myself. And then the purpose of the tower is again a lot about how you want to manage yourself. So maybe for yourself, you like, you know, you have something, or you believe you have something to give or to in the future, some sort of energy, positivity, knowledge, vibes, help, any altruistic behavior which you believe that you can give to others. That could be the purpose. For some, it could be making sure that I keep myself safe, and the people around me who mean a lot to me, I keep them safe, right? Does that make sense? Can you connect? Yeah, makes sense. थोड़ा Yeah. बहुत समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? Because you guys shared, so I'm just giving your examples. नहीं Anyway, समझ आ रहा. कौसे मैं आपको individually भी थोड़ा reflect करूंगी, ठीक है? I'm ठीक है, okay, perfect. slightly mindful about large groups में इस तरह करना. So ऊपर से मैं आपको समझा रही हूँ. I want you to start thinking in that direction, and then maybe we can think about it. Anybody else? We have few minutes. I think we can take one more अगर कोई comfortable है. साजदा अपा, मैंने जो अपना बनाया है उसमें ऑलमोस्ट सेम ही चीजें हैं, एंड ऑब्वियसली आई कैन रिफ्लेक्ट कि मेरा जो है वो वैसे तो ब्रिक्स का बना हुआ है, लेकिन उसकी जो आउटर कवरिंग है वो वुडन है, और वो एक्चुअली एक क्लॉक टावर की तरह है जिसपे क्लॉक शो हो रही है, और जिसका एंट्रेंस का सिर्फ एक ही डोर है. मैंने एक ही टावर बनाया है और एंट्रेंस का एक ही डोर है जो कि इजीली एक्सेसिबल है लोगों के लिए. और मैंने उसके सराउंडिंग्स में जो है वो पीपल हैं, कार्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, शॉप्स हैं. मे बी यू वुड थिंक कि मैं खारादर वाले टावर को देख रही हूँ शायद, लेकिन एंड द लास्ट थिंग इज जो मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैंने इसका पर्पस ये लिखा है कि एक तो ये क्लॉक टावर है तो ये आपको टाइम बता रहा होता है. सेकेंडली ये एक स्टॉपिंग एरिया भी होता है कि यूजुअली बस वहीं उतारती है. देन थर्डली जो मेरा मेन है कि कोई भी टावर मेरे नजदीक ये हो रहा होता है कि कोई एक फेमस प्लेस होती है कि हम लोगों को बोलते हैं भाई यहाँ तक आ जाओ, फिर आगे का रास्ता हम समझाते हैं. तो मैं बाकी सब चीजों पे तो कर सक रही हूँ रिफ्लेक्ट, लेकिन ऑब्वियसली आई डोंट नो कि क्लॉक का क्या रिफ्लेक्शन होगा और मेरा पर्पस जो है लास्ट वाला उसका क्या रिफ्लेक्शन होगा. आई थिंक क्लॉक एंड काइंड ऑफ लाइक अ बस स्टॉप, आप यही कह रहे हो ना, इस तरह का कोई, एंड देन अगेन अ फेमस प्लेस. में तीनों में मुझे जो चीज समझ आ रही है वो ये है कि एक पॉइंट है जिस पे आप थोड़ी देर के लिए आओगे एंड देन इट विल मूव ऑन. डज दैट मेक सेंस, राइट? सो काइंड ऑफ अगेन देखिए, बहुत वेगली मैं कह रही हूँ, बट जो भी मैं कह रही हूँ वो एक डायरेक्शन में कह रही हूँ. आई वांट यू टू कंसिडर एंड थिंक. आई एम नॉट सेइंग ऐसा ही है, आई एम सेइंग इसके बारे में थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करो. तो तीनों चीजों में एक कॉमनैलिटी जो मुझे नजर आ रही है वो ये है कि इट्स नॉट दैट, इट्स अबाउट मूविंग ऑन फ्रॉम देयर. टाइम भी रुकता नहीं है, बस भी रुकती नहीं है, और टूरिस्ट अगर आके कुछ देखता है तब भी रुकता नहीं है, ठीक है? तो तीनों चीजों में कि जो भी मेरे पास आ रहा है, मेरे करीब आ रहा है, जो भी मेरे साथ अटैच हो रहा है, वो इतना ही करीब में आने दोगे. समझ आ रही है मेरी बात? बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना इजीली मूव ऑन नहीं कर पाती हूँ. मैं No, उस it's चीज about के अंदर स्टक रहती हूँ. Aksar, it's not about you. It's about the other person. You will. I'm not going to say you will push the other person away, but I'm saying उस person को आप इतना ही आने दोगे. उसके बाद उसको ओके आप समझ रहे हो? बस मेरा आपका इतना कनेक्शन है वक्ती तौर पे, यानी जिसको हम कहते हैं दूर दूर की दोस्ती, बस इतना. And then you're like, mine and your work is finished. खलास. Do you understand that? Yes. Makes sense? True. Okay. अच्छा, क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम शॉर्ट हो रहा है तो मैं आपको 2-3 पॉइंट्स और समझाती हूँ. And this is something which fascinates me every time I see, and I've seen
in some of the drawings. That's why I'm explaining. Ek to the number of towers, right? Most of you have drawn one tower, but some of you have drawn more than one tower. तो वो कौन है जो एक टावर बनाते हैं और कौन है जो 2-3 टावर बनाते हैं, वो भी एक सवाल है. ठीक है. फिर जितना आप इस चीज को खोलते हो उतना मुझे और फैसिनेट करता है कि some of you have not drawn a lot around me, but some of you have made flowers, trees. अच्छा, जिसने ट्री बना, देखिए ये सब मैं आपको फिर कह रही हूँ, it's not me, right? It is years of research has come to this conclusion, and my point here today is only to give you a spark to start thinking along those directions. तो अगर किसी ने बर्ड बनाया तो 2 बर्ड क्यों बनाए, 4 क्यों नहीं बनाए? अगर किसी ने सन बनाया है तो वो सन इस टावर के ऊपर क्यों बनाया और उस टावर के ऊपर नहीं बनाया? अब आप कहेंगे इट्स जस्ट अ ड्राइंग, मैं सोच के थोड़ी कर रही थी. लेकिन फिर मैंने आपको यही तो बताया कि दिस इज आर्ट एंड दिस इज एक्सप्रेसिव आर्ट एंड दिस इज डायरेक्टिव आर्ट. हर चीज का डेफिनेट आंसर नहीं है, बट डेफिनेटली अ पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है कि क्या क्या चीज है जो इंडिकेट. मिसाल के तौर पे अगर आपने 2 टावर बनाए या 3 टावर बनाए और तीनों बड़े कनेक्टेड हैं, यानी आई रिमेम्बर व्हेन आई मेड द फर्स्ट टाइम, मेरे 3 टावर थे, उसमें एक बड़ा छोटा छोटा, लेकिन तीनों बिल्कुल जुड़े हुए थे. और कोई और था जिसने 2 टावर बनाए थे लेकिन उसके बीच में एक फासला भी था और ब्रिज भी था. So they were connected, but there was kind of like a breathing space. Whereas even in my case, I made 3 towers, but they were like जुड़े हुए थे. There was literally no breathing space between themselves. So again, अक्सर ऐसा है कि अगर आपने एक बनाया, it's a reflection of you. But if you have made something which is absolutely attached to you, then it could be a reflection of again somebody who is so closely associated with you that आप अपनी लाइफ को उनसे हट के नहीं देख रहे हो. यानी आप बिल्कुल बिल्कुल एक हो. जिस तरह मे बी वो उस बच्चे के बारे में मैंने आपको बताया था ना, वो अली हसन बन गया था, राइट? सो आई एम नॉट सेइंग इट इज अनहेल्दी एज लॉन्ग एज आप अपने आप को जानते हो, लेकिन एट दिस पॉइंट एटलीस्ट आप अपने आप को उससे ऐसे associated देखते हो, that you see yourself as a one whole. So it could be a reflection of maybe you and your partner, it could be you and your child, it could be you or your parent, it could be anybody, but हो सकता है it is a reflection of this. Again, for those of them who made maybe two birds, या किसी ने अभी शेयर किया 2 balloons, so why 2, right? Why not 3? Again, it could be a reflection of maybe 2 most important people in your lives, or 2 things which you believe are very important to you. तो अब जब हम आपको बड़ा वेगली बोलेंगे तो फिर आप सोचोगे कि हाँ, maybe it could symbolize this. So a drawing analysis can give you a feeling of ये चीज आपके लिए important है, जरा सोचो, rather than यही होगा. I cannot tell you यही होगा, but I can ask you to pinpoint क्या इस एरिया को जरा फर्दर आप एक्सप्लोर करें. उसी तरह अगर आपने मिसाल के तौर पे जो आपका टावर है, कासल है, उसको किसी रिवर के पास बनाया है, किसी गार्डन के पास बनाया है, तो अगेन हम बड़े इंटरेस्टेड हैं कि वो जो अगर रिवर है तो रिवर का जो पानी है वो पानी कैसा है, वो पानी बड़ा काम है, स्मूथ है, या उसमें बड़ा टर्बुलेंट है. ड्राइंग में ये कैसे नजर आता है, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही थी कि ट्राई एंड यूज कलर्स, ट्राई एंड यूज, जब आप ड्रॉ करते हो तो लाइंस जो आप बनाते हो उसके स्ट्रोक्स होते हैं, उन स्ट्रोक्स से भी काफी चीजें पता चल जाती हैं, राइट? द वे, अब मैंने आपको ये सब बातें बाद में क्यों बताई, क्योंकि बनाओ फिर आपके माइंड में होता है ये सब कुछ, तो अनकॉन्शियसली आप बनाओ, बट देन कॉन्शियस लेवल पे बहुत सारी चीजें सरफेस पे ड्रॉइंग से भी आ सकती हैं. So I will stop here. You have a weekend coming. For some of you, I know it's a long weekend. तो उसको थोड़ा सा revisit अगर करना है तो अच्छे से इस टावर को और अच्छे से बनाएं, बहुत सारे कलर्स यूज करें, प्रॉपर से बना के. If you want to share it, you can individually share it, and then maybe we can have a little chat about it, right? And exactly on time आज हम खत्म करेंगे. Your last thoughts. What are you thinking right now, and what are you feeling? I'll be waiting for your response on my tower. Inshallah, cousin. Namaaz padh ke. Inshallah. That's the most important thing. Anything? Any other thoughts?
इतनी मेहनत हम क्यों कर रहे हैं? इतनी मेहनत इसलिए हम करें क्योंकि वाकई अगर आपकी सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी में आपको कुछ इम्प्रूव करना है, कुछ चेंज करना है, तो वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग अनलेस वी एक्सेप्ट इट। तो थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है कभी कभी, लेकिन उसको पुश करके आपकी जो भी वो चीजें हैं जो आप भुलाना चाह रहे हो या आप इस केओस में रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हो, उसको हम थोड़ा सा सामने ला रहे हैं, एक्सेप्ट करवा रहे हैं, ताकि इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट की तरफ से जर्नी काम तो शुरू हो। या एंड योर माय लास्ट थॉट्स फॉर टुडे, कोई पढ़ना चाहेगा? Oh yes. मेरे ख्याल में चलाए? अभी हमसे कह रहा है कि हर चीज आपकी नियत पर है, राइट? अगर बल्कि वो तो इतना प्यारा है, वो तो ये कह रहा है कि अगर किसी वजह से काम कर भी नहीं सको, सिर्फ नियत आपकी होगी, तब भी जो है वो इंशाल्लाह पहला कदम आपका लिखा जाएगा। तो यही चीज वो यहाँ पे यूं हमें समझा रहा है। किस तरह से समझा रहा है, कोई पढ़ेगा? मैं पढ़ दूं? जी जी प्लीज। Whatever you do, if you do it sincerely, will eventually become a bridge to your wholeness, a good ship that carries you through the darkness. ये वाले लास्ट जुमले पे थोड़ा सा मुझे काम करना है। ये क्या लिखा हुआ है? कैरीज यू थ्रू द डार्कनेस। मतलब मुश्किल वक्त में भी वो अच्छा या वो इंटेंशन आप पे काम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई ऐसा ही है, ऐसा ही है, राइट? जिंदगी में बार बार आपसे ये कह रहे हैं कि देखें, देर इज नो कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ चीजें हमेशा पॉजिटिव रहेंगी, हमेशा अच्छी रहेंगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि परेशानी ना आए। परेशानी जिंदगी का हिस्सा है। देयर विल बी डार्क डेज, देयर विल बी चैलेंजेस, बल्कि अल्लाह आपसे कह रहे हैं नहीं आए परेशानियां तो थोड़े से परेशान हो जाओ कि क्या हो रहा है, राइट? यही तो हमें करीब भी करता है, यही हमें कनेक्ट करता है, और यही हमारा असल इम्तिहान है कि are we using all our resources to be able to still manage and thank Allah. So inshallah, when we meet now next week, final week, we will slightly open the chapter of the darkness and how to cope with that and how to manage that, right? So how are we feeling right now? Are we all ready for the weekend? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ठीक है। चलें इसको इधर एंड करते हैं, एंड वी विल मीट इंशाल्लाह ऑन ट्यूसडे। थैंक यू। खुदा हाफिज। Hafiz, thank you. Thank you.